Students, today we discuss about the MCQ question regarding the chapter 8, 9, 10. 8, 9, 10 चैप्टर्स जो हैं आपके क्लास 8 का उसके MCQ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो सेल रिगार्डिंग होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको क्लास 11 बायोलॉजी में मिलेगा, क्लास 10 में भी है। तो हम लोग इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इस चैप्टर्स के जितने भी MCQ क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा आपको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए। So we start our from first question from chapter 8, 9 and 10. Total there are 30 questions and these are very important, only based on NCERT. Okay, now we start without any wasting of time. Question number one, cell discovered by किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? ऑप्शन नंबर 1 इज रॉबर्ट ब्राउन, बी इज रॉबर्ट हुक, ओके, सी इज रॉबर्ट। नेम द biggest cell. Okay, name the biggest cell. Option number 1 is neuron. Option number B is egg of ostrich. Okay, C is potato cell, and last one, that is D, none of this. Okay, that is question number 2. Now we move to question number 3. Question number 3 is which one is known by powerhouse of cell. Okay, now option number 1 is Golgi. Okay, option number B is mitochondria. Option number C is mitoDNA. Last one, that is D, none. Okay, now we move to question number 4. Question number 4 is based on figure. Now we revise from 1 to 4, then we discuss all these answer. Okay, cell discovered by, cell किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया, या फिर रॉबर्ट कैलियाटी के द्वारा डिस्कवर किया गया, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो ये क्या है? आपके चारों के चारों क्या है? दोस्त नहीं है, ना ही दुश्मन है, केवल 3 दुश्मन है, एक दोस्त है। आपको उसको क्या करना है? दोस्त को बुला के ले आना है। कहाँ पे? अपने कॉपी पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द बिगेस्ट सेल। आपको क्या बताना है? बिगेस्ट। ओके, मैंने बताया था आपको देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, बिगेस्ट मतलब बड़ा। ओके, तो आपको बताना बिगेस्ट सेल। ओके, फर्स्ट वन इज न्यूरॉन, बी इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सी इज पोटैटो सेल, एंड लास्ट वन, दैट इज डी, नन ऑफ दिस। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन इज नोन बाय पावर हाउस ऑफ सेल? फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोगोल्गी, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, C is mitoDNA, and D is none. Okay, that is question number 3. Now we move to question number 4, that is based on diagram, जो आपके NCERT बुक से लिया गया है। इस डायग्राम को आपको नाम बताना है। अगर आप इस डायग्राम के बारे में कुछ जानते हैं तो उसको ज़रूर लिखिए। 3-4 पॉइंट यूजेज हो सकते हैं, कोई पर्पस हो सकता है, तो आपको जो पता है इसके बारे में आप लिखिए। डोंट वरी, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, जितना याद होगा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सेल वॉल present in, okay, option number A is plant cell,
Option number B is animal cell. Okay. Option number C is both A and B, and last one that is D, none of these. Okay, that is question number 5. Now we write question number 6 of example of single cell. Okay, option number A is, बताइए, एग, किसका एग, मुर्गी का अंडा, हैंस एग. B is human sperm. Okay, option number C is both A and B, and last one that is D, none of these. Okay, that is question number 6. Now we move to question number 7. 7 is cytoplasm. Cytoplasm present between the dash and the nucleus. Okay, option number 1 is cell membrane. Option number B is plasma membrane. Option number C is both A and B, and last one that is D, none. Okay, that is question number 7. Now we move to question number 8. Now we revise from 5, then we discuss about the 8 that is based on figure. Okay, cell wall present in, जो cell wall present होते हैं वो किस में present होता है? First option is plant cell, B is animal cell, okay, that is I. C is both A and B, and last one that is none of these. Okay, you have to take only in one option, right? Now question number 6 is example of single cell. तो सिंगल सेल का एग्जाम्पल क्या होगा? A is hen's egg, B is human sperm, C is both A and B, and last one that is D, none of these. Okay, you have to take only in one options. देखिए, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर मत लिखिएगा. इट्स माई हमली रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर एग्जाम देते समय मत लिखिएगा. ओके, कॉपी में लिखिए, कोई बात नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द. साइटोप्लाज्म क्या है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सबस्टांस है, ठीक है. कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन द डैश एंड द न्यूक्लियस. किसके किस बीच में होता है? एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है. दैट इज सेल मेम्ब्रेन, B is plasma membrane, C is both A and B, and last one that is D, none of this. Okay, so you have to tick, you have to write only one option. चारों के चारों क्या हैं? दुश्मन नहीं है, केवल 3 दुश्मन है. एक आपका दोस्त है, उसको उठा के कॉपी पे पटक दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन फिगर. आपके बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है. उस फिगर का नाम बताना है, पर्पस बताना है, यूज बताना है. लेकिन फर्स्ट यू राइट, मस्ट राइट द नेम ऑफ दिस डायग्राम. ओके, डायग्राम का नाम लिखिए, उसके बाद आपको यूजेज पर्पस जो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेरी गुड, डोंट राइट. वेरी नाइस. जो भी बच्चे देख रहे हैं, हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड. देखिए, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर मत लिखना. हाँ सर, नहीं लिखेंगे. वेरी गुड. इजंट इट क्लियर? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज example of eukaryotic cell. Okay, option 1 is bacteria. Okay, option B is blue, green algae. Option number C is both A and B,
and last one, that is D, none of these. भैया, none of these. Okay, now we move to question number 10. Fertilization which takes place inside the body, inside the body of organisms. Okay, it may be called internal fertilization. Okay, now B is external fertilization. C is zygote, and last one, that is D, none of these. Okay, that is question number 10. Now we move to question number 11. Question number 11 is which type of fertilization common in aquatic organisms. Okay, option number 1 is internal. Okay, B is external. Okay, option number C is environment, and D is none of these. Okay, none of these. Now we move to question number 12. Question number 12 is based on figure. Okay, now we revise example of eukaryotic cells. Examples of eukaryotic cells का क्या होगा? ओके, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. क्या बैक्टीरिया हो सकता है? बी इज ब्लू ग्रीन एल्गी, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट वन इज डी, दैट इज नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ we move to 10 question. Fertilization which takes place inside the body of organisms, okay, that may be called internal fertilization. B is, that is B, external fertilization. C is zygote and D is none of these. ठीक है, जो बच्चे भूखे हैं थोड़ा खा पी के बैठा करिए. होता है क्या कि एग्जाम दे देते आधा छोड़ के भाग जाते हो, कोई आया है ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दिया भाग गया. ऐसे नहीं करो, है ना. That is not a good habit. Now question number 11 is which type of fertilization common in aquatic organisms? Okay, कौन से इसमें से fertilization जो aquatic organisms में common है? First one is internal, B is external, C is environment, and D is none of these. That is question number 11. Now question number 12 is based on figure. आपके green board में एक diagram दिख रहा है. First you have to determine the name of this diagram. Then you must, if you want to write the points regarding this diagram, you must write obviously. और अच्छे से लिखने की कोशिश करिए, सही लिखने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं. Okay, now we move to question number 13. Okay, now question number 13 is dog and cow. Dog and cow is an example of option number A is oviparous animal. ओके, वेरी गुड. दोनों आंखें खोल के ना देख रहे हो, वेरी नाइस, है ना. ऐसा नहीं गलत ऑप्शन मिल रहा है, वेरी नाइस. बी इज विविपेरस एनिमल. ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनल rat, and option number D is
ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज the embryo takes about dash weeks to develop into a chick, इंटू अंडे से जो बच्चे होते हैं ना मुर्गी के, उसको चिक मतलब तो बोले तो बच्चे नहीं, चिक ही बोलेंगे, है ना. वेरी नाइस. तो टेक्स अबाउट डैश वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक. ओके, डेवलप इनटू अ चिक, दैट इज कॉल्ड नहीं होगा. ओके, ये तो मैंने गलत लिख दिया ना. वेरी गुड, किसी बच्चे भी नहीं. चलिए, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट डैश वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक. ऑप्शन नंबर 1 इज, आंसर बता रहे हो आप लोग? नहीं, गलत बात, आंसर नहीं बताना है. ऑप्शन ए इज 2, बी इज 3, सी इज 4 एंड डी इज 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज rearing of silkworm. Rearing of silkworm is called, option number 1 is sericulture. Okay, option number B is pisciculture. Option number C is both A and B, and last one, that is D, none. Okay, that is question number 15. Now we move to 16 question number based on figure. Now we revise dog and cow. आपने कुत्ते को भी देखा, गाय को भी देखा, वेरी नाइस, देखा ही होगा. Dog and cow is an example of, option number A is oviparous animals, now B is viviparous animals, C is internal rat animals, and D is none of these. Okay, now question number 14. The embryo takes about dash week to develop into a chick. Option number A is 2, B is 3, C is 4, D is 5. Okay, very nice. Rearing of silkworm. Question 15 is rearing of silkworm is called, A is sericulture, B is pisciculture, C is both A and B, and D is none. Okay, that is question number 15. Now we move to question number 16. Very nice, बहुत ही अच्छे. 16 आपका फिगर आपके सामने दिख रहा है. इस फिगर का आपको नाम बताना है. अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो लिखिए, कोई बात नहीं है, सही लिखने की कोशिश करिए. और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, जो भी है बड़े चलो, है ना. दिमाग खोल के, दोनों आंखें खोल के आंसर को लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे. वेरी नाइस. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. 17 क्वेश्चन को देखेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज द amoeba show. Option number A is binary fission. Option number B is multiple fission. Option number C is both A and B, and last one is none of these. Okay, now question number 18. Question number 18 is number of nuclei present in a जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना, और मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे. ऑप्शन नंबर ए इज
2, B option is 3, C option is 4, D option is 1. ओके सर इसमें नन ऑफ दिस नहीं दिया कोई बात नहीं, इसी में से आंसर लिख लो, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज adolescence begins around the age of option number A is 11, B is 12, C is 13, D is 14. Okay, that is question number 19. Now we move to question number 20. Question number 20 is based on figure. Okay, now we start discussion. The amoeba show करता है. Option number A is binary fission, B is multiple fission, C is both A and B, and D is none of these. Okay, that is question number 17. 18 is number of nuclei कितने प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन अ जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर A is 2, B is 3, C is 4 and D is 1, that is 1. Okay, now 19 question is adolescence begins around the age of. Option number A is 11, B is 12, C is 13, D is 14. Okay, now 20 is based on diagram. वेरी इंटरेस्टिंग. आपको इस डायग्राम का नाम बताना है, आपको इसके पर्पस बताने, यूजेज बताने, जो भी आप जानते हो, शॉर्ट नोट. ओके, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ पर्पस यूज जो भी है, लेकिन आप इस डायग्राम के नाम बताइए और नोट लिख सकते हैं. अच्छे से लिखने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि अच्छा से लिखें, सही लिखें. अगर आप नहीं लिख पाते हो देन आप ट्राई करो. ओके, स्किप नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर कभी भी नेगेटिव मार्किंग की बात आती है देन आप रिस्क नहीं लेंगे. 3-4 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं बट हर एक क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लेंगे. गेस करना सही है लेकिन हर एक क्वेश्चन पे नहीं. ठीक है, छोड़ने से अच्छा है कि आपको स्टिक कर दो, वो चलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन पे नहीं. ठीक है, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. नंबर 21 इज formula for calculation of full height. Okay, option number 1 is height by percentage of full height at this age into 100. Okay, option B is present height by percentage of full height at this age into 1000. Okay, now option number C is, that is option number A. Option number C is both A and B, and option number D, that is last one, present height by percentage of half height at this age. Into 1000. ओके, यू हैव टू टेक ओनली वन ऑप्शन. इसमें से जो भी एक सही है उसको आप जवाब देंगे. ठीक है, ब्लैक बोर्ड का स्पेस कम है. चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. पहले डिस्कशन कर लेते हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट. देखिए, फुल हाइट का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए एक फार्मूला दिया गया आपको ABCD में. आपको इसमें से कोई एक चुनना है जो सही है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेजेंट हाइट जो सेंटीमीटर में दिया गया है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस age. Okay, that is first one into 100. Now second one is present height and the percentage of full height at this age into 1000, and C is both A and B. इसमें से दोनों सही है. And last one is present height by percentage of half height at this age into
तो इसमें से आपको पहचानना कौन सा सही है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज बेस्ड ऑन फिगर, ठीक है। 22 जो है आपका फिगर बेस्ड है। इस डायग्राम का नाम बताना है जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ओके, तो यू हैव टू प्रिडिक्ट द नेम ऑफ दिस फिगर एंड इफ यू वांट टू राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस डायग्राम यू ऑब्वियसली यू राइट, और सही लिखने की कोशिश करिए। जो अगर आप सही लिखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मुझे भी खुशी होगी। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, mensuration occur once in about, option number A is 28 to 32 days. Okay, option number B is 28 to 30 days. Option number C is, that is option number C, 28 to 29 days, and the last option is, that is D, none of these. Okay, now question number 24, metamorphosis in frog is controlled by कैसे कंट्रोल होता है? ऑप्शन 1 इज इंसेक्ट हार्मोन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज calcinate ion, and last one, that is D, none of these. Okay, that is question number 24. Now we move to question number 25. Savasi, very nice. Now Savasi, very good. आपने जो आंसर दिया था पहले भी, मैंने आपका इसलिए नाम लिया पहले क्योंकि आपने जो पहले आंसर दिया था काफ़ी अच्छा दिया था और कमेंट बॉक्स में आप आंसर को नहीं लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द लीगल एज फॉर बॉयज डैश एंड गर्ल्स, ठीक है, फॉर मैरिज। ओके, कितना होना चाहिए वो बताना है आपको अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट ऑप्शन इज 18 and 21, बी इज 19 and 22, सी ऑप्शन इज 23 and 24, and last one, that is D, none. Okay, now we move to question number 26. 26 is based on figure. Okay, now we revise question 23. Menstruation occur once in about, menstruation जो आता है फीमेल बॉडी में, okay, 28 to 30 days या फिर 28 to 30 days, C is 28 to 29 days, and D is none of this. देखिए menstruation के दौरान जो ब्लीडिंग होती है फीमेल बॉडी में तो वो एक्चुअली ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो ब्लड नहीं होता, ब्लड सेल, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल में भी क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि जब ओवम रिलीज होता है तो अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन वो डेड सेल्स के रूप में क्या होता है, रिमूव हो जाता है फीमेल बॉडी से। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन। ओके, नाउ दिस 24 इज मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग is controlled by, okay, first option is insect hormones, B is iodine, C is calcinate ion, and D is none of these. That is question number 24. 25 is the legal age for boys. legal age क्या है बॉयज़ का? ऑप्शन 1 एंड गर्ल्स का, ये भी बताना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात की जा रही है, बॉयज़ का इधर है, गर्ल्स का इधर बात किया गया है। फॉर मैरिज, शादी के लिए कितना एज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स? 18 and 21
18 बॉयज़ के लिए, 21 गर्ल्स के लिए क्या? बी ऑप्शन आपका 19 एंड 22, 19 बॉयज़ के लिए, 22 गर्ल्स के लिए है क्या? सी इज 23 एंड 24, 23 बॉयज़ एंड 24 गर्ल्स के लिए है क्या? एंड डी इज, इसमें से सभी ऑप्शन गलत है। नाउ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस गुड्डू, वेरी नाइस। चलिए 26 है आपका फिगर बेस्ड डायग्राम, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये डायग्राम को आपको पहचानना है और इसके नाम लिखने हैं। ये जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर से लिए गए 8, 9, 10 के अंदर से लिया गया है, और जो भी आप इसके बारे में जानते हो वो भी लिख सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. 27 इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, इसका मतलब ये आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके, या फिर आपका बोथ ए एंड बी दोनों सही है, या फिर लास्ट वन आपका नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज डी. नाउ 28 इज द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज जाइगोट, ओके, एंड बी इज एम्ब्रियो, ओके. नाउ सी इज fetus, and last one that is D, none of these. Okay, that is 28. Now we move to question number 29. Question number 29 is development, the complete development of baby inside the female body, inside the female body, or we can say that mother is called, option number A is fetus, option number B is limbs, okay, option number C is fimbriae, and option number D is acrosome. Okay, now question number 30. Question number 30 is based on figure. Now we revise from 27 विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 28 देखेंगे द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज जाइगोट, बी इज एम्ब्रियो, सी इज फीटस एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है माँ के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज मदर, इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज फीटस, बी इज लिम्स, C is fimbriae, that is B, so don't confuse fimbriae, and D is acrosome, that is C. Okay, acrosome. Now question number 30, that is the last question of this series based on diagram from the chapter 8, 9 and 10. तीनों चैप्टर्स में आप देखेंगे डायग्राम आपको जरूर मिलेंगे, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है. फर्स्ट टू राइट द नेम ऑफ दिस डायग्राम, देन if you want to write some points regarding this diagram, must you write and try to write the correct sentence or the correct point. Okay, गलत नहीं लिखिएगा, अच्छे से लिखने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि कुछ सीख के जाएं. ओके, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में ये मदद करेगा. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होंगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे. अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है देन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा. ओके, बट वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको. फ्री टाइम पे मैं जवाब देता होता है, बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं डेली के जवाब मैं दे देता हूँ. मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली के जवाब डेली दे दूँ. ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप ऑब्वियसली अपने डाउट्स को क्लियर करिए और कुछ अच्छा करिए. ओके, अच्छा आपका भी बर्थडे है, थैंक यू. आप अपने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और जीवन में कुछ अच्छा करिए और आगे बढ़िए. ठीक है, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, हर एक से कुछ सीखने की मिलेगी, सीखने को कुछ मिलेगा, सीखिए, एक्सपीरियंस मिलेगा. गुड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस. जब झेलता है इंसान तो सीखता है, और जब सीखता है तो मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी बढ़ती है ना. मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग नहीं आता है. आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े भी हैं तब भी बचपना है उनमें. मैच्योरिटी आता है आपका एक्सपीरियंस से.
आपने जो झेला है, जो आपने देखा है, नकारात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस लोगों में जो देखा है, उससे आपने कुछ सीखा, वो मैच्योरिटी होता है, वो धीरे धीरे आपको मैच्योर बनाता है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएगा। हर एक चीज़ को अपने दिमाग में पॉजिटिवनेस लेके चलिए, नकारात्मक चीज़ें होंगी, ठीक है, उससे भी आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ले लीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।